Good morning students. Today we are going to learn about water for all. That is what our topic is in chapter number 16 and it is given on page number 275 of your textbook. Now talking about water, what I perceive from your textbook is water is our basic essential necessity, right? That without water we cannot survive. And our basic problem is that we are facing scarcity of water. So now my question arises, how can we face scarcity of water when our earth is covered almost 70% of water, right? So how to suffice the answer? So before going to why water is important to us, we need to understand why there is a scarcity of water. It's just simple that though we have 70% of water, but the fresh water we have which we can drink, which we can use is just 3%. If we have 3% of fresh water, what does it mean? That every person is in a need of this fresh water. Now when you say, ma'am, what is fresh water and what is saline water? So if I had to consider this fresh water system, it consists of water present in rivers, lakes, ponds, wells. If the water is present in these entities, it is said to be fresh. Now why fresh? Because it is flowing water. It flows. It flows from one junction to another, and hence due to this rotation the water is drinkable, the salts are less. Okay. Now if you talk about the rest percentage what we have, which is saline water. So what does this consist? Nothing but oceans. Okay, oceans and seas what we have. So now this saline water is there lot on the earth, but as compared to this ये बहुत कम है. Again मेरा एक question arise होता है, तो क्या हम saline water को fresh water में convert नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? There is science, there is technology, पर अगर देखने जाए तो this is when you have to convert this. This is a renewable form of energy. मतलब कि इसको convert करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे instruments का जरूरत है. एक तो उनका cost बहुत high है. मतलब इससे conversion के बाद अगर हमारे घर में पानी आता है तो वो पानी का चार्ज हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा. लाइक आप आज भी बाहर जाते हो, when you have to pay 20 rupees for that bottled water, so it becomes difficult for us. हम ये सोचते हैं इससे अच्छा तो हम घर का पानी लेके जाए, right? So with this mentality and with the right mentality what we have, हमें ये पानी बहुत ही महंगा पड़ता है, तो इसीलिए हम ये कन्वर्जन नहीं करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब हमें ये जो है इसी को नर्चर करना है ताकि हमें ये मिलता रहे. अब ये चाहिए तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इज द रेनफॉल. तो चलिए वो भी पॉइंट ऐड करते हैं हम कि इफ यू वांट फ्रेश वाटर देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रेनफॉल. तो ये अगर रेनफॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर बारिश नहीं आएगी तो इनमें पानी कैसे भरेगा? ठीक है. दूसरा मैं बताती हूँ आपको कि रेनफॉल इज रियली इम्पोर्टेंट इवन फॉर इरिगेशन. व्हाई? अगर इरिगेशन नहीं होगा, अगर ग्रीन पैच जो है हमारा, जो फॉरेस्ट एरिया का है, वो नहीं बढ़ता है, तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट द रेन. ठीक है. So due to this reason, it is very difficult कि भाई रेन आए. अगर
हमारे पास जैसे आप एक प्रेजेंट एग्जांपल ही ले लो, कोरोना था तो लॉकडाउन मिला हमको, तो लॉकडाउन जब मिला हमको तो 2 months वी वर देयर एट होम, राइट? सो देयर वाज नो व्हीकल ऑन रोड्स, there was no pollution, there was no industries which were releasing out the toxic gases. True. And all you could see was greenery, different animals started out seeing. So ये सब सिनारियो होने से क्या हुआ, अभी देखो रेनफॉल कितना जल्दी आया इस साल, राइट? दिस इज द ट्रू सीजन ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया. और इफ वी टॉक अबाउट आवर वेस्टर्न साइड, यस इट इज. बट अर्लियर क्या होता था, कई साल आया नहीं आया, बहुत पोल्यूशन है तो वो कम आता था. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम फ्रेश वाटर सिस्टम से डील कर रहे होते हैं तब. अब चलिए बात करते हैं कुछ इस आपका जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट का, जहां पे दे से दैट water is basic necessity for the terrestrial form, right? Apart from that, जब मैंने बोला कि पूरी जो वाटर साइकिल है हमारी, पहले तो हमारी वाटर साइकिल को हमें याद करना है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि ये जो वाटर साइकिल है वो कैसे जनरेट होती थी. तो लेट मी टेल यू, क्लाउड्स होते थे, राइट? तो वाटर पहले तो ओशन ले लो या रिवर ले लो, पानी इवापोरेट होता था, इवापोरेट होके क्लाउड बनता था, क्लाउड बनने के बाद वो सन को कवर करता था, कंडेंसर होते थे ड्रॉपलेट्स और यूज्ड टू रेन. सो दिस यूज्ड टू बी साइकिल इन प्रेजेंस ऑफ सन. एक तो इवापोरेशन हो, उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स एंड देन फाइनली रेनफॉल. सो दिस साइकिल गेट्स erupted, disrupted via pollutants. What have been released from these vehicle or industry we can say, right? इसी वजह से ये रेनफॉल हमारा अनइवन हो जाता है. कहीं पे होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं पे होता है तो बहुत कम होता है, और कुछ जगह जहां पे एक्चुअल एक्सपेक्टेड है वहां पे आता ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ वी डिस्टर्ब आवर दिस वाटर साइकिल. देन फर्दर, so there is a human intervention. इसे हम human intervention कहते हैं. वो बोलते हैं ना human का नाक अडाना. Yeah, that is what we do. After the above things, I mean above activity which has been patented, कि आपको अटलास में से रेनफॉल पैटर्न मतलब जाननी है, so that we will do later on. अभी हम एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करेंगे for this particular chapter. इस चैप्टर में हम एक्टिविटीज लास्ट में करेंगे. ठीक है, तो एक ये स्टडी पे से एक पैटर्न बताती है कि भाई रेनफॉल जो होता है ना वो रूरल एरिया में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, अर्बन में कम होता है. मैं दूसरा आपको बताती हूँ, भले ही रूरल में ज्यादा है पर इरिगेशन के लिए उनको फिर भी पानी नहीं मिलता है. अब इसके हम फैक्टर्स सब कुछ हम स्टडी करेंगे बाद में, नॉट नाउ. सो जो ये रूरल वाले हैं उन्होंने क्या किया, एज आई सेड कि भाई चलो इरिगेशन के लिए हमारे पास पानी नहीं है, डेली एक्टिविटीज को सरवाइव करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो वी विल कंस्ट्रक्ट सम सच थिंग्स जहां से हमको पानी मिले. तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब यहाँ पे 2 चीज और ऐड हुआ. वन वॉज द कैनाल सिस्टम जो हेल्प होती है, जो जिसमें पानी आता है फ्रॉम द डैम में आता है थ्रू द रिवर एंड इवन द रेनफॉल. सो ये सब इकट्ठा मिला के क्या करते हैं, पानी का स्टोरेज, फ्रेश वाटर सिस्टम का स्टोर करना. नाउ फर्दर इफ यू गो, हमने क्या किया कि इरिगेशन के लिए अगर हमारा वेजिटेशन कवर कम हो जाएगा तो भी रेनफॉल में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने क्रॉप की पैटर्न डाली. अब एक क्रॉप जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया था क्रॉप की पैटर्न में, कि मान लो कि एक मिनट, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. मान लो ये एक
फील्ड है, ठीक है। अभी आई विल डिवाइड दिस फील्ड इनटू 2। फर्दर अगर मुझे जरूरत लगा कि मुझे इंटरक्रॉपिंग करना है तो मैं इस फील्ड को 4 भाग में डिवाइड करूंगी। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद इफ यू रिमेम्बर यहां पे मैं प्लांट करूंगी लेट्स से वीट। हम ऐसा मान लेते हैं कि हम वीट का प्लांटेशन कर रहे हैं। अब वीट में कितना पानी चाहिए? तो वीट में मॉडरेट पानी का जरूरत होता है। मेरा दूसरा प्लांटेशन उसके साथ होगा उड़द का, उड़द दाल, ठीक है। सो आई डू द ऑल्टरनेट, फिर यहाँ पे वीट, यहाँ पे उड़द दाल। तो अभी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मानो इसका रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ डेली पर्पस इस वीट का, यहाँ पे भी वीट आएगा, तो इन दोनों का रिक्वायरमेंट मिला के मुझे यहाँ पे एवरी डे 30 लीटर्स ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इन दोनों का मिला के मुझे सिर्फ 20 या फिर ले लो 10 लीटर्स ही चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरा वाटर का रिक्वायरमेंट हो गया 40 लीटर्स। लेकिन अगर मेरा ये पूरा वीट का होता, मानो ये उड़द का नहीं है और इधर वीट ही होता दोनों में, तो ये मेरा ये दोनों का मिला के 30 और इन दोनों का भी मिला के 30, तो 30 प्लस 30 हो जाता 60 लीटर का रिक्वायरमेंट। तो अभी हमें ये समझना है, हमने 60 से 40 आया। अब मानो कि 40 में भी स्केर्सिटी है, तो आई विल स्टार्ट मिक्स क्रॉपिंग। अब मिक्स क्रॉपिंग में व्हाट आई डू, मिक्स क्रॉपिंग में मान लो कि अगेन दिस इज अ फील्ड, तो इस पैच में कुछ अलग ग्रो करेंगे, इस पैच में कुछ अलग होगा, इसमें भी अलग होगा, ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं होगा, और इसमें भी अलग होगा। फिर इसको भी मैं 4 में डिवाइड कर दूंगी, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग, ठीक है। यहाँ पे भी अलग, फिर यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग, और यहाँ पे भी अलग। मतलब हर एक साइन अलग अलग है। आप देखो, इट मीन्स कि हर जगह का कुछ ना कुछ प्लांटेशन डिफरेंट है, मतलब उसका वाटर रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए डिफरेंट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दैट ये क्रॉप पैटर्न हमने चेंज किया ताकि हम पानी जितना है उतने में ही काम कर सके। पर अब उससे भी कम होता है तो हमें क्या करना है, देन वी नीड टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ द वाटर, जहाँ पे हम 2 चीजें करते हैं। फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेकेंड इज दिस कि हम डैम का कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है। इसके बाद वी सी दैट जनरली पुराने जमाने में ओल्ड टाइप्स मेथड थी फॉर इरिगेशन के, लोग हाथ से ही करते थे या फिर पाइप्स थे, तो ये सब करते थे। अभी क्या हो गया, अभी नया पैटर्न आ गया जैसे स्प्रिंकलर्स वगैरह, तो वो भी एक एक्सपेंस बढ़ जाता है, वो एक प्रेशर बढ़ जाता है कि स्प्रिंकलर्स को भी काम करवाना है। नो डाउट द मेथड इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, पर वो एस्टेब्लिशमेंट करने का खर्चा भी तो होता है। अगेन उसमें प्रॉपर वाटर प्रेशर रहा नहीं रहा, वो भी तो प्रॉब्लम होता है हमारे लिए। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें पानी को कैसे हम प्रॉपरली मेंटेन कर सके। सो दैट इज वाई हमने फिर ऑप्शन फाइनली ढूंढा कि भाई आप डैम कंस्ट्रक्ट करो या फिर आप ऐसी वाटर की कोई एंटिटी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम वगैरह मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है।